परमेश्वर अब्राहम को आशीष देगा, God blessed Abraham और आशीष देगा और बोलेगा, प्रभु ने बोला उसको कि मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारी जमीन मैं तेरे को दे दूंगा। प्रभु ने अब्राहम को बोला। and God tells Abraham that I will give you the whole land that you see and I will make you father of the nations. लेकिन आशीष देने के बाद धीरे से बोलता है और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा, आशीष का कारण होगा, यानी कि तू प्राप्त भी करेगा। मैंने 2 हफ्ते पहले बोला आशीष तुझे मिलेगी भी, लेकिन प्रभु ऐसा करेगा कि तू अपने हाथों से दूसरों के लिए आशीष का कारण बन But जाए। after saying all that I will bless you and I will give you all these things, God tells him that you will be a blessing for others. And so Abraham has been given those blessings, but he also has to be a blessing for others. That is the goal of his life. आज सुबह इस चर्च के भवन से बाहर निकलने से पहले आंसू के साथ प्रभु से प्रार्थना करके जाना, प्रभु मेरी सेवा क्या है, आज मुझे सौंप प्रभु, ताकि उस सेवा को मैं पूरा कर कर तेरे सामने में एक दिन प्रवेश हो सकूं। Before you leave this church this morning, pray out to God, cry out to God and ask him, God, what is the service? What is the ministry? What is the calling of my life for which you have called me, so that I can fulfill it? See, over this small period of my ministerial life, I've understood that not everybody has the same passion or the same burden. और मैंने अपनी सेवकाई के इस छोटे समय में मैंने इतना जान लिया है कि हर एक के पास एक समान बोझ या एक समान सेवकाई या एक समान बुलाहट नहीं होती है। किसी को बच्चों की सेवकाई से इतना प्रेम है और दूसरों को लगता है ये बच्चों की सेवा में करके क्या टाइम बिगाड़ रहे हैं, पैसा बिगाड़ रहे हैं। ये अलग-अलग बोझ है, अलग-अलग बोझ है। Some people love so much ministering to children and serving them, and there are others who feel, oh, what is this ministry, this children's ministry and all. These are different burdens and different callings that have been given to different people. इतना ही कहूंगा, जो बोझ प्रभु ने आपको दिया है उस बोझ को दूसरों के ऊपर मत डालिए, उस बोझ को पूरा करने का अनुग्रह आज प्राप्त करिए। जो बोझ प्रभु ने आपको दिया है, जो बुलाहट प्रभु ने आपको दी है, आपके हाथों से पूरा करवाएगा और प्रभु की महिमा आपसे लेगा। Let me tell you this much, that the burden and the call that God has placed over your lives, do not push it on to others or do not place it over others, but ask grace from God, ask for mercy from God, so that you can fulfill the call and the burden that is over your life. अगर आपको किसी विशेष जगह के लिए एक बोझ आ रहा है, आप दूसरों को फोन करके परेशान मत करो, आप खड़े हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको राजाओं के सामने खड़ा करेगा और उस देश के लिए आशीष और छुटकारे का कारण आपको बनाने जा रहा है। If God has placed a burden in your life for a specific place, don't call other people and push them to go there, but be ready, be prepared and ask for God's grace so that God will prepare you to go to that place and minister. आप लोग दुआ नहीं कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो यार, आप मेरे बोझ के लिए तो आप दुआ नहीं कर रहे हो, आप आपके बोझ के लिए दुआ कर रहे हो। अरे आप लोड मत लो, आपकी आधी दुआ काफी है, पूरा स्वर्ग आपके लिए उतर कर आएगा जब आप प्रभु की मर्जी को पूरा करना शुरू करें। Don't be worried that people are not praying for me, and why should I pray for others, or how can I pray for others, there is no one praying for me. You start praying in the presence of God and God will do great things through मेरे you. साथ विश्वास से बोलिए, मेरे लिए एक सेवा प्रभु ने रखी है। जोर से बोलिए, Say it with faith this morning, that there is अरे a ministry जोर kept से for me. बोलिए, मेरे लिए एक सेवा प्रभु ने रखी है। जोर से बोलिए, There is a ministry kept for me, और प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है। जोर से बोलिए, and the favor of God is upon me, और मेरी सेवा को मैं पहचानूंगा और पूरा करूंगा। जोर से and बोलिए, I will recognize the ministry that is kept for me and I will fulfill it. विश्वास से बोलो, मेरी सेवा को मैं पूरा करूंगा प्रभु की दया से। Believe it and say that I will fulfill the ministry that is kept for me. इस चक्कर में मत रहना कि सेवा का मतलब केवल चर्च के अंदर है। कुछ सेवा संडे को हो ही नहीं सकती, कुछ सेवा 11 बजे होगी, कुछ सेवा दिन में 3 बजे होगी, कुछ सेवा बस स्टैंड में होगी या कॉर्पोरेट ऑफिस में होगी, हमको नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा ने खूबसूरत सेवकाइयां आपके लिए तैयार करके रखी है और आपके इन दिनों में प्रभु का भला हाथ वहां की ओर लेकर जाने जा But रहा let है। me tell you, don't just limit your understanding of ministry to what is done inside the church. And on Some of Sundays, the- some of the ministries can't be done inside the church. Some of it may be done on the bus stand. Some of it may be done in the place where you work. Some of it may be done in the place where you live. But say this to God, God, prepare me for whatever ministry you have called I am me. ready to move into my calling, oh God. मैं अपनी उस बुलाहट में बढ़ने के लिए तैयार हूं परमेश्वर। I am ready to move into my destiny as you have prepared me, and I am yet, Lord. I don't think I'm ready yet, but I want to step into my destiny. और मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे हमेशा लगता है कि मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन जिस बात के लिए तूने मुझे बुलाया है, जिस उद्देश्य के लिए बुलाया है, उसकी ओर मैं कदमों को आगे बढ़ाना चाहता हूं अगर आप ये परमेश्वर। वचन स्वीकार कर रहे हैं तो हाथ उठा के प्रभु को जोर से धन्यवाद देना शुरू करें।
रही And if है। you receive this word of God this morning, raise your hands and जोर praise से बोलिए God. हालेलुया। Hallelujah. मेरी सेवा मैं पूरी करूंगा, जोर से बोलिए। I will fulfill my ministry. एक आयत में आपको देना चाहता हूँ। Let me give you one verse. भजन संहिता 44 के 3 में खूबसूरत आयत लिखी है वहां पर। Psalm 44 verse 3, there's a beautiful वहां verse लिखा there. है, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरी प्रसन्न मुख के कारण वे लोग जयवंत हो गए, क्योंकि तू उनको चाहता था। और यही बात आप पास्टर ब्लेसन आराधना में के बाद प्रार्थना में आप बोल रहे थे। In Psalm 44 verse 3, it says, Read it it, was yes. not by the sword that they won the land, Yeah. nor did their arm bring them victory. Oh, yes. It was your right hand, your arm, and the light of your face, for you loved them. देखिए, पर मैं आपको परमेश्वर, प्रभु मेरी ओर देख रहे हो क्या? आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? मैं चर्च में बैठा हूं, आपको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। प्रभु की टकटकी लगाई नजरें आपके ऊपर है, आप घबराओ मत, आपको प्रभु देख रहा है और ठीक समय पर प्रभु आपसे प्रेम करता है, इसलिए अपने बड़े हाथ को आपके लिए बढ़ाएगा और आपको छोड़ेगा नहीं। You don't have to ask God, God, are you looking at me? Are you watching over me? Are you paying attention to me? Let me tell you, God is constantly watching over you, and in the right time He will raise you up to fulfill the call that He has placed in your life. नेहमिया को सौभाग्य मिला कि जो काम सालों से अधूरा पड़ा था इज़रा ने शुरू किया, उसको पूरा कर उसके बाद भी 12-13 साल उस राज्य के ऊपर राज्य करने के लिए अनुग्रह प्रभु ने नेहमिया को दिया, उसके जीवन का उद्देश्य पूरा किया। Nehemiah received the grace to not just rebuild the walls of Jerusalem, but to also rule over that place for 12 to 13 years and to fulfill the call that God had placed over his life. मेरा समय पूरा हुआ, अंत में एक और बात बोलकर मैं आपके साथ प्रार्थना करूं। My time is over today, but let me tell you one more thing this morning. जब परमेश्वर का बड़ा हाथ आपके ऊपर है ना, When God's great hand is upon you, कितने लोग विश्वास से घोषणा करना चाहते हैं परमेश्वर का बड़ा हाथ मेरे ऊपर है इन दिनों में? बोलिए। how many of you want to declare this morning that God's great hand and God's favor is अरे upon जोर से me? बोले ना, आप आपके शब्दों में सामर्थ्य है, विश्वास से बोलिए प्रभु का बड़ा हाथ मेरे ऊपर इन दिनों में है, ऐसे विश्वास से बोलिए। Your words of power, and so say it with faith that God's great hand is जब upon me. प्रभु का बड़ा हाथ आपके ऊपर होगा ना, तो राजमहल के अंदर से आपके लिए ऑर्डर्स निकलेंगे, लकड़ियां कटेंगी, आपके लिए जो संभव नहीं है ऐसा प्रबंध परमेश्वर आपके लिए आने वाले दिनों के अंदर करने जा रहा When है। God's gracious hand is upon you, there will be orders coming from the Yes. palace. There will be provision done for you. Yes. Timber will be made available. Yes. All that you need will be made available before you even step out to do what you need to मुझे do. बहुत अच्छा लगा और मेरे थोड़ा विश्वास को थोड़ा और इस आयत ने बढ़ा दिया। And my faith was increased when I read this verse. उसने नेहमिया ने राजा को बोला, सर हमको एक चिट्ठी चाहिए जिससे हमको सिक्योरिटी मिलेगी, हमको ट्रैवल में हर पुलिस चौकी के हमें लेटर बताएंगे, लेटर भी चाहिए और एक और लेटर चाहिए। वहां जाने के बाद हमको तेरा भवन भी बनाना है और कोर्ट भी बनानी है और मेरा एक झोपड़ी भी बनानी है, उसके लिए भी लकड़ी चाहिए, उसका भी अब लेटर बना दो। और राजा ने बना के उसको दे दिया। Nehemiah said to the king that we need a letter from you so that we can get safe passage through the Yeah, lands. yeah. Oh, at every junction, at every place, we can get safe passage. Yeah. But we also need one more letter so that we can get the wood, the timber to build the house Screen of दिखाई, God. next We slide can get the दिखाइए। timber to build the fortress, हाँ। at the same time to build a small house for me. And the God allowed, or God worked in the heart of the king to allow all that to him. आप लोन के लिए अप्लाई करें उससे पहले घोषणा करें, यीशु के नाम से मेरे लिए प्रबंध आने वाले दिनों में होने जा रहा है। Before you apply for a loan, let me tell you, pray to God and declare it in faith that in the coming days God's provision will be there for मैं me. गवाही किराए पर लेकर आपको अभी आपको बोलना चाहता हूं। I want to take a testimony on loan and I want to tell you this morning. अभी मैंने सुना जे सैमुअल अंकल और उनकी बेटी करिश्मा की इच्छा थी कि वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज भारत में नहीं बाहर जाके पढ़ाई करें। And sorry. करिश्मा सैमुअल की इच्छा थी, मैं चर्च की बेटी है कि हमको पढ़ाई करनी है प्रभु, लेकिन बाहर जाके पढ़ाई करनी। And Charisma Samuel, daughter in our church, had the desire that she wants to do her postgraduate studies outside India. लेकिन उनके माता पिता ने बोला आप प्रार्थना करो और स्कॉलरशिप मिल जाए तो आप जाना, ऐसे बोला। Her parents said to her that you pray about it and if you get a scholarship you can go and study. एक दो जगह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, वहां से बड़ा लेटर आया आपको नहीं मिलेगा करके। She applied 1 or 2 places for scholarship and she got a big letter saying that you have not been granted the लेकिन जब scholarship. उसने जहां से सोचा नहीं, एक यूनिवर्सिटी ने उसको रेकमेंड करके ब्रिटिश काउंसिल से अप्लाई करवाया और ज्यादा नहीं 20 लाख का स्कॉलरशिप परमेश्वर ने उस बच्ची के लिए प्रबंध करवाया। आज वो यूके में पढ़ रही है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं। But one of the universities बजाओ, about ताली which she बजा रहे तो didn't पूरा think बजाओ।
They recommended her to the British Council and she got a scholarship for 20 lakhs and now she's studying in the UK. और अभी सुना कि उसको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश होने का मौका मिला, और जब परमेश्वर का हाथ किसी के ऊपर है तो वो बंद दरवाजों को ही नहीं खोलता है, जहां दरवाजे है नहीं वहां पर भी बड़े बड़े दरवाजे आपके लिए खोलने वाला मेरा परमेश्वर And है। recently we heard that she got the opportunity to be in the presence of the British Prime Minister. Yes. And so let me tell you, Yeah. God is not just a God who opens the closed doors, Oh. but where there are no doors, He creates new doors for you. आज से ये प्रार्थना मत करो प्रभु मेरा दरवाजा खोल दे, विश्वास से बोलिए प्रभु तेरा हाथ मेरे ऊपर है और जहां दरवाजा नहीं है वहां पर भी तू मेरे लिए दरवाजा खोलेगा ताकि मेरी बुलाहट को तेरी महिमा के लिए मैं पूरा कर सकूं परमेश्वर।